ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا سب سے پہلے, کیونکہ ٹریننگ تو بعد کی بات ہے نا, اس سے پہلے میں آپ کو مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے ایک بات کرتا چلوں کہ سر آپ کبھی بھی ایک جینون پلیٹ فارم کے ساتھ فیک پلیٹ فارم کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک فیک پلیٹ فارم کے ساتھ آپ اپنے جینون پلیٹ فارم کو جا کے جہاں پہ بھی کمپیئر کرو گے آپ پیچھے رہ جاؤ گے, کیونکہ جھوٹ اٹریکٹیو ہوتا ہے. سچ بولنے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے اور اس کو برداشت کرنا اور اس کے ساتھ چلنا جگر والوں کا کام, عام بندے کا کام نہیں, چھوٹے دل والے بندے کا کام نہیں, چھوٹے ظرف والے بندے کا کام نہیں. جہاں پہ آپ کو ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, مستقل مزاجی چاہیے, ویژن چاہیے. سب سے بڑی چیز ہے ویژن. ویژن کے اوپر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا چلوں. ہم امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا. میں آپ سے پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں, جب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو کتنے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے والے تھے, جبکہ جانتے تھے یہ حق کے اوپر. تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہاتھ بلند کرنا چھوڑ دیا, مشکلات کے آگے ڈگمگا گئے, چھوڑ دیا اپنے ویژن کو. کیوں ڈٹے رہے, کیوں نہیں نیگیٹو ہوئے, کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ اس کے پیچھے سر ایک ریزن, اور وہ ریزن ایک ہی تھا, ویژن کلیئر کٹ تھا. ان کو پتا تھا یہ جو میری قوم ہے, یہ جو میرے امتی ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کرنا ہے, یہ سارے ابھی بے خبر ہیں. ان کو نہیں پتا کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے نعوذ باللہ کو کمپیئر نہیں کر رہا, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سر حق کی سب سے بڑی دلیل آپ کی مخالفت ہے, آپ کی ریجیکشنز ہیں, آپ کے ایشوز ہیں, آپ کے پرابلمز ہیں. اگر پرابلم آ رہی ہے تو سمجھ جانا کوئی بڑا کام کر رہے ہو, پرابلم نہیں آ رہی تو ابھی تک روٹین وائز آپ زندگی گزار رہے ہو. آواز کلیئر نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے سر, اپنی بات باقی جو آپ لوگ اپنے جی سر آ رہی ہے. اگر میں پرماننٹ میوٹ کر دوں تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد میں آپ کے کویشچن تمام لوگوں کو دوں گا, جب تک آپ کے کویشچن کلیئر نہیں ہوں گے اب تک میں نہیں چھوڑوں گا. تو کیا میں پرماننٹ جی سر سب کو کر دیں, میوٹ کر دیں سب کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو, اوکے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. سب سے پہلے ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی بڑے سفر کا آغاز کرتے ہیں, بڑی منزل کا تعین کرتے ہیں, کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, باہر سے مخالفین نہیں آئیں گے, باہر سے رکاوٹیں نہیں آئیں گی, باہر سے آبجیکشنز نہیں آئیں گے, باہر سے دشمن نہیں بنیں گے. آپ کے اندر میں سے ہی کوئی بندہ ہوگا, آپ کے اندر میں سے ہی کوئی ایسا نکلے گا جو آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا, جو آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا, جو آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. اور سر وہ بندہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ آپ کو فری ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا, جو آپ کا دوست جب دشمن بنتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے پاس آپ کے تمام راز ہیں, اس کے پاس آپ کی تمام ہڈن چیزیں ہیں. آپ کس طریقے سے ورک کرتے ہو, آپ کا کیا پلان ہے, آپ کس طریقے سے اکاموڈیٹ کرتے ہو, آپ کے پریزنٹیشنز کیا ہیں, آپ لوگوں کو انوائٹ کیسے کرتے ہو, لوگوں کو سکلز کیسے دیتے ہو, آپ کس چیز کے اوپر لوگوں کو ہائپ کریٹ کرتے ہو, یہ تمام چیزوں سے وہ واقف ہو. اس لیے ایک باہر کے دشمن سے گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہو. تو اس لیے اس کے اوپر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں گے کہ ہم ہیں کہ تعلق نبھانے میں لگے ہیں, کہ ہم ہیں کہ تعلق نبھانے میں لگے ہیں, کچھ لوگ مگر دل کو دکھانے میں لگے ہیں. معلوم کرو ہاتھ انہی کا تو نہیں تھا, کہ معلوم کرو ہاتھ انہی کا تو نہیں تھا, جو لوگ یہاں آگ بجھانے میں لگے. کچھ لوگ سر آپ میں بیٹھ کے, آپ کے گنگا کے, آپ کی ٹیموں کو آپ کے سامنے موٹیویٹ کر کے, آپ کا نعرہ لگا کے, آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی ٹیموں کو ڈیموٹیویٹ کرتے, آپ کی نیگیٹیوٹی بیان کرتے ہیں. اچھا ایک بات اس یہاں پہ یاد رکھیے گا, آپ کی ٹیم ڈی موٹیویٹ کب ہوتی ہے؟ سر ٹیم ڈی موٹیویٹ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس پراپر نالج نہیں ہوتا, جب وہ ویژن سے کلیئر نہیں ہوتی, جب وہ سسٹم سے کلیئر نہیں ہوتی, صحیح اور غلط کی پہچان نہیں, حق اور ناحق کی پہچان نہیں, حلال اور حرام کی پہچان نہیں, تو اس وقت آپ کی ٹیم ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی. اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے, آپ کا ایک مقصد ہے, جس مقصد کے ساتھ آپ اس پلیٹ فارم پہ آئے ہو,
जब किसी भी कंपनी में, किसी भी सिस्टम में आप एक खास मकसद के साथ काम कर रहे हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई डीमोटिवेट हो जाए, कोई गलत के साथ उसका नारा लगा दे, उसके साथ खड़ा हो जाए या गलत तरीके से अपना कैरियर बनाना चाहे, सवाल ही पैदा नहीं। याद रखिएगा, मुसलमान होने के नाते सबसे पहली जो दलील है वो ये है कि हमें मुश्किलात को फेस करना आना चाहिए। सर 313 डट गए तो हैरान कर दिया, फतह कर लिया। 313 थे सर, लाखों के सामने। हम उम्मत के हैं, ठीक है, अल्लाह को मानने वाले हैं। और जहाँ पे कुरान में वाज़े लिखा गया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। लोग पढ़ते हैं मुश्किल के बाद आसानी नहीं है सर, मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किलात से गुजरते जाओ, आसानियों की तरफ बढ़ते जाओ। अगर आप सोचो ना कि आपके रास्ते में फूल पत्तियाँ पड़ी होंगी, आपका रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा, कोई मुश्किलात आएंगी नहीं, कोई रुकावटें आएंगी नहीं, लोग आपके सामने नहीं आएंगे, आप बस ऐसे ही आएंगे, ज्वाइन करवाएंगे, टीमें बनाएंगे, पैसा उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं। इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना मुश्किल नहीं, इस बिजनेस में सेल टीम जनरेट करना मुश्किल नहीं, इस टीम में किसी को अपने साथ खड़े कर लेना भी मुश्किल नहीं। इस टीम में, इस काम में सबसे जो मुश्किल तरीन काम है वो ये है कि आप अपने जैसा किसी के अंदर विजन डिलीवर कर जाएं। और दूसरा, आप अपने कंपीटेटर की बातों से अपनी टीम को महफूज कर लें। महफूज कब कर लें कि आप अपने वाला नॉलेज, अपने वाला विजन, अपने वाली सोच, अपने वाली मुस्तकिल मिजाजी अपनी टीम के अंदर डिलीवर कर दें। और वो कब होगी? जब आप मैक्सिमम अपनी टीम के ऊपर जोर लगाएंगे, मैक्सिमम अपनी टीम को समझाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम अपनी टीम के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। कैसे? मैं आपको इसके ऊपर 2 चीज़ें बताऊंगा। आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी दुनिया के प्रोफेशन में जाएं, आप किसी भी जॉब में चले जाएं, आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, आप डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएं, किसी भी शोबे में आप जब कदम रखेंगे वहाँ पे 2 तरह के लोग पाए जाएंगे। अब आपने यहाँ से डिसाइड एक करना है कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, कहाँ पे खड़े हैं, किस तरह का आपका माइंडसेट है, आपको फिर रिजल्ट उसी तरीके के आएंगे। इस 2 तरह के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जब कोई बंदा कदम रखता है तो वो 2 मकसद लेके आता है। एक होता है सिर्फ पैसा, याद रखिएगा, एक बंदे का मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा। दूसरे बंदे का मकसद होता है सिस्टम, एसेट्स, पैसिव इनकम, ठीक है जी। सिस्टम बनाना है, एक बार ऐसा सिस्टम बना जाना है कि उसके बाद मुझे दोबारा इसकी तरफ काम ना करना पड़े। ये 2 माइंडसेट है। अब जो सिर्फ पैसे के लिए आया है वो जब भी सोचेगा पैसे का सोचेगा, जब भी सोचेगा ज्वाइनिंग का सोचेगा, जब भी सोचेगा अपना सोचेगा। किसी टीम का ख्याल नहीं, किसी सिस्टम का ख्याल नहीं, किसी विजन का पता नहीं, बस पैसा 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 पैसा। पैसे से सर कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। पैसा, लोग कहते हैं हाथ की मैल है, हाथ की मैल नहीं है सर। पैसा जिसके पास नहीं है उसको पता है इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन सर पैसा सब कुछ भी नहीं होता। आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट, आपका वजूद, आपका कैरियर, आपका लोगों में बैठना, आपकी पीठ पीछे लोगों की तारीफ करना, दिल में लोगों की मोहब्बत होना, आपके ऊपर यकीन का लेवल इस कदर होना कि ये बंदा कुछ भी हो जाए, एक बार अगर इसने ज़बान दे दी ये चेंज नहीं हो सकता, ये अल्लाह की देन है। और ये बहुत बड़ी दौलत है। अगर आपने लोगों का बिलीव, लोगों का यकीन, लोगों का इत्मीनान जीत लिया तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जीत ली। पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा बड़े लोगों के पास है, लेकिन सर वो जीने के काबिल नहीं, घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं है, लोगों को शक्ल तक नहीं दिखा सकते। जिस बंदे के पास काला पैसा है, जिस बंदे के पास ब्लैक मनी है, उसके पास जाके तो दिखाएं। सर वो मिल नहीं सकता। जो बंदा अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकता उस पैसे का चार्ट डालें। मैं पहले भी हर सेशन में, हर मीटिंग में कहता रहता हूँ कि सर अगर 2 चीज़ों में से एक चीज़ आपको चुननी पड़े, एक पैसा है और दूसरा करैक्टर है, तो आप करैक्टर को टेक करें, पैसे को मतलब छोड़ दें, भेज दें जिधर जाता है, लानत भेज दें उसके ऊपर। करैक्टर बचा लेना है, पैसा दांव पे लगा देना, पैसा फिर आ जाएगा, करैक्टर दोबारा नहीं आएगा। सर बड़ी नाजुक चीज़ है आपके पास आपका करैक्टर, आपका किरदार, आपकी इज्जत नफ्स। ये एक बार दागदार हो जाए दोबारा वापस नहीं आएगा। पैसा जिस तरह दिल करें, इज्जत है, करैक्टर है, शोहरत है, नाम है, आपके पास पैसा ऐसे आएगा जैसे वो एक पत्ते नहीं गिरते सूखे दरख्त से एक बार हिला दे, ऐसे ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर जब भी आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ को पिक करना पड़े, एक करैक्टर प्लस पैसा, तो आपने करैक्टर पिक करना है, पैसे को नहीं पिक करना।
जब भी इन दो चीज़ों में से एक चीज़ आ जाए। अब याद रखिएगा, जो बंदा पैसा कमाने आता है वो भी पैसा कमाता है, ऐसा नहीं है वो पैसा नहीं कमाए, लेकिन याद रखिएगा वो जब तक अपनी ज़ात के लिए काम करता रहेगा उसका पीछे सिस्टम नहीं बनेगा, उसकी टीम मजबूत नहीं बनेगी, उसके पीछे रॉक टीम नहीं होगी, उसका मजबूत नेटवर्क नहीं होगा, उसके हम ख्याल लोग उसके साथ खड़े नहीं होंगे। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ मुखलिस नहीं है और आपके साथ कोई मुखलिस खड़ा हो जाए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं। तो क्या है, दूसरी साइड पे एक बंदा होता है विजनरी, जिसका विजन होता है, जिसको क्लियर कट पता होता है मैंने 2 सालों में क्या करना है, मैंने 3 सालों में कहाँ पे खड़े होना है। तो इसके लिए जो बंदा विजन लेके आता है वो सिस्टम भी बनाता है, वो पैसा भी कमाता है, वो पैसे भी उठाता है, और उसको टीमों से भी कोई खतरा नहीं होता, उसको कंपटीटर से भी कोई खतरा नहीं होता, उसको अदर प्लेटफॉर्म से भी कोई खतरा नहीं होता, उसको लोगों के हाईजैक करने से भी कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी टीम, मेरा सिस्टम, मेरा एसेट इतना मजबूत है, मैंने इनको इतना विजन दिया है कि ये 2 टक्कों के खातिर अपना ईमान नहीं बेचे, ये लालच की खातिर अपना कैरियर दांव पे नहीं लगा दे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ आ जाएगी आपको। सर, नई और ताज़ा मूंगफली आने से बादाम की कीमत कम नहीं हो जाती, अट्रैक्टिव होती है, लोग लज्जत लेने के लिए चखते ज़रूर हैं, 50 की नहीं 5 रुपए की लेते ज़रूर हैं, लेकिन सर बादाम की कभी वैल्यू डाउन नहीं होती, हर चीज़ अपनी एक वैल्यू रखती है। आप एक भुट्टा लेते हैं ना, भुट्टा जो हम खाते हैं, ठीक है, मकाई वाला, 5 रुपए बनने के लिए पहले मुश्किलात को फेस करना। आप मानते होंगे अल्लाह है, हर बंदे का यकीन है, बिलीव है अल्लाह है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते, शायद मुझसे भी ज्यादा मानते हो आप, अल्लाह आपको मजीद तौफीक दे। जब अल्लाह है तो फिर घबराना क्यों? जब आपको पता है आप अच्छा काम कर रहे हो फिर घबराना क्यों? जब आपको पता है आपका सिस्टम ठीक है फिर टेंशन किस बात? जब आपको पता है आप लोगों को कैरियर देने के लिए आए हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीने आए। क्योंकि एक बार हजरत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि इंसान और हैवान में फ़र्क किस चीज़ का है, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत जवाब दिया, जो अपने लिए सोचे वह हैवान है और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। तो इंसानियत बहुत कम चीज़ पाई जाती है, कम लोगों में पाई जाती है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर आपके अंदर किसी के लिए हमदर्दी है, आज अगर आप जो ट्रेनिंग ले के बैठे हैं, जिन लोगों का विजन क्लियर करवाना चाह रहे हैं, तो अल्लाह पाक इसका सिला आपको ज़रूर दे, ठीक है जी। और हमेशा याद रखिएगा, लीडर मुश्किल वक्त में पैदा होता है, अच्छे वक्त में नारा सब लगाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बार, आपको पता ही है, दिया बुझा दिया था कि जो जो मेरा साथ छोड़ के जाना चाहता है वो जा सकता है। एक बार बुझाया कोई नहीं गया, दूसरी बार बुझाया कोई नहीं गया, तीसरी बार बुझाया और बोला मुझे पता है आप में से कुछ लोग जाना चाहते हैं, मैं किसी पे नाराज नहीं हूँ, जो जाना चाहे वो जा सकता है। कितने बच्चे बाकी, कितने लोगों ने साथ दिया, कितने लोग बैठे थे, और जब दिया दोबारा जलाया गया तो चंद एक या दो लोग बैठे, बाकी सारे निकल गए। तो उनको नहीं पता था हक क्या है। सर, कामयाब हर कोई होना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, हक के ऊपर डट के खड़े होना कोई नहीं चाहता, हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, जुर्रत किसी के अंदर नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सारे लोग, तकरीबन हम में से भी तकरीबन 70% लोग तो ऐसे होंगे जो कहते होंगे गुलामी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। नारा लगाते हो ना, स्टेटस लगाते हो ना, सारे नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो नारा लगाते हैं इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर, नामंजूर। लगाते हो कि नहीं? अमेज़न किस मुल्क की कंपनी? FLP किस मुल्क की कंपनी? अमेरिका की है। एक तरफ कहते हैं नामंजूर, नामंजूर, कट जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा ना, ये गुलामी मंजूर नहीं करेंगे। दूसरे उसी मुल्क को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी मुल्क को एम्पावर कर रहे हैं, उसी मुल्क की कंपनियों को, उसी मुल्क को बढ़ा रहे हैं। तो अंदर मुनाफिकत है कि नहीं?
एक तरफ नारा लगा देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर ये तो एक अलग कहानी है। इसके बाद सर मैं आपको एक चीज मेन समझाना चाहूंगा कि अगर लालच की बेस के ऊपर सिर्फ पैसे के लिए आए हैं तो ये आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जहां पे पैसा ज्यादा नजर आएगा वहीं पे निकल जाएंगे, क्योंकि मतलब पैसा है, जहां से पैसा आएगा तो उधर ही जाना है। लेकिन जिस बंदे का लाख रुपए देख के अपना 70,000 नहीं छोड़ेगा, उसको पता है 70,000 परमानेंट है, 1 लाख आरजी है, कब तक खाऊंगा। जिस दिन 1 लाख आना बंद हो गया सर, कैरियर दांव पे लग जाएगा, खाना दांव पे लग जाएगा, किचन दांव पे लग जाएगा। लेकिन जिस बंदे का परमानेंट कैरियर फ्यूचर प्लानिंग है, उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस में अप्स डाउन चलते रहते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके लिए ये पहली बार होगा मेटाफोर और साज, हमारे लिए कई साइटें आई, कई चली गई, वावेला मचाया, लोगों को प्लान दिए, लोगों को कैरियर दिए, लोगों को दिनों में करोड़पति बना दिया बातों से। जब बनने की बात आई साइट ही दी। ठीक है जी। तो एक शेर है छोटा सा, इन बड़ी साइटों के मुकाबले में हम तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो स्कैमर होते हैं वो अपने आप को बड़ा चढ़ावा देते हैं कि चढ़ता सूरज कहंदा सी, कि चढ़ता सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा, कि चढ़ता सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा, निक्का जिहा दीवा बोलिया शाम पई ते वेखा। तो सर वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, टाइम हर बंदे का आता है, जिसने अच्छा किया होता है उसको अच्छा मिलता है, जिसने बुरा किया होता है उसको बुरा जरूर मिलता है। तो इसलिए इन चीजों से आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। सॉरी म्यूट हो गया था। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए अपनी नजरें कभी आपकी नीची ना हो, लोग आपके ऊपर बात ना कर सकें, आपके करैक्टर के ऊपर कोई उंगली खड़ी ना कर सके, और आप वाकया ही में अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं 4 चीजें आपको बता देता हूं। इनमें से डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। नंबर 1 है जॉब। जॉब में सर आप चाह के भी कैरियर नहीं बना सकते, फ्यूचर नहीं बना सकते, जिंदगी गुजार सकते हैं, ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको अगर पूरा इसका रिजल्ट दे दूं, अगर एक बंदा जॉब पे लगता है 18-20 हज़ार रुपए पे और रिटायर्ड होता है 40 हज़ार रुपए पे, तो तकरीबन राउंड अबाउट एवरेज इसकी बनती है 28-29 हज़ार रुपए। 28-29 हज़ार को आप ज़रब दें 12 से, तो 3,36,000 आपके पर शेयर बनते हैं टोटल पैसे। आप 1 रुपया खर्च ना करें, कुछ भी ना करें, और आपके जो 20 साल के बनते हैं 28 हज़ार की एवरेज के साथ, वो बनते हैं 60,20,000 रुपए। और आप 25 लाख रुपए पेंशन भी इसमें डाल दें, 20 साल अपनी जवानी के, अपनी खुशियों के, घर वालों को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, बच्चों की तरबियत छोड़ के, अपनी मर्जी को छोड़ के, आज़ादी को ख़त्म करके पूरी ज़िंदगी अपनी जवानी अगर दाव पे लगाएं, तो 20 साल बाद जॉब लगने के बाद आपके पास 92 लाख रुपए आते हैं। क्या उसमें से आप खर्च नहीं चुके होंगे, घर के अखराजात नहीं होंगे, खुशी गमी नहीं आएगी, बच्चों की फीसें नहीं होंगे, घर के अखराजात नहीं होंगे, वालिदैन को कुछ नहीं देंगे। अच्छा, आप मुश्किल 25 लाख रुपए आपने वो किए और 15 लाख रुपए आपने सेव कर लिए, 40 लाख रुपए हो गए। 40 लाख में एक अच्छा घर बनता है, गाड़ी कब लो, खुशियाँ कब आएंगी, सैर और तफरीह कब होगी, बच्चों की फीसें कौन देगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कब करोगे, आज़ादी की ज़िंदगी कब गुजरेगी, नहीं गुजर सकती। नंबर 2 पे आ जाता है सर फिजिकल बिजनेस। फिजिकल बिजनेस भी एक जॉब है, आपकी एक्टिव इनकम है, पैसिव नहीं है। आपने एक दुकान बनाई, 10 साल चलाने के बाद 11वें साल बंद कर दी, पैसा आना बंद। 15 साल चलाई, 16वें साल बंद। 20 साल चलाई, 21वें साल बंद। आप इस दुनिया से चले गए, आपकी नस्ल को बैठना पड़ेगा, दुकान ओपन करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, पैसा आएगा। जिस दिन टाइम देना बंद कर दिया, पैसा आना बंद। इसका मतलब है इस बिजनेस में पैसा है, आज़ादी नहीं। नंबर 3 प्रोफेशन। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप वकील बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद, उस दिन पैसा आना बंद। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि सारी जिंदगी एज ए मशीन काम करना है या आपने अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। नंबर 4 ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ दुनिया कन्वर्ट हो रही है। सर 2G का जमाना नहीं रहा, 5G का जमाना आ चुका है, और वही बंदा तरक्की करता है जो वक्त के साथ अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। जो बंदा अपडेट नहीं कर रहा, अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जा रहा, उसका कैरियर बड़ा खतरे में है, उसका फ्यूचर बड़े खतरे में है, उसकी जिंदगी बड़ी खतरे में है। क्यों? आज के दौर में अगर आपको 20, 25, 30 हज़ार रुपए की भी जॉब मिल जाए ना मेरे भाई, तो घर नहीं चलता।
घर नहीं चल सकता, एक बंदे की सैलरी से घर नहीं चलते। एक 30-40 हजार रुपए पर मंथ बहुत कम अमाउंट है, सरवाइव कर सकते हो, गुजारा कर सकते हो, जरूरत पूरी कर सकते हो, ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। और 2026 में 60% लोग जॉब होल्डर प्लस फिजिकल बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएंगे। और 2030 में 80% लोग जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, जो ऑलरेडी जॉब पर्सन है, वो फिजिकल को छोड़ के ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आ जाएंगे। और आज भी अगर कोई बंदा जॉब में अपना फ्यूचर तलाश कर रहा है, जॉब में अपना कैरियर तलाश कर रहा है, तो वो कितना पीछे है, उसका कैरियर कितना दांव पे लगा हुआ है, सोच सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए सबसे पहले कि आपका कैरियर कहाँ पे सिक्योर है, आपका फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है, आप आगे कहाँ पे बढ़ सकते हैं। मेहनत इंसान हर जगह पे करता है और अंत तक करता है, लेकिन वहाँ पे मेहनत करें जहाँ पे आपकी एफर्ट से ज़्यादा आपके रिजल्ट्स हैं, जहाँ पे आप काम थोड़ा करें रिजल्ट ज़्यादा हैं। लोग ऐसे ही करते हैं, कामयाब लोग ऐसे ही होते हैं। अगर सिर्फ मेहनत करने से पैसे आते, मजदूर दुनिया का करोड़पति इंसान होता नहीं है, क्योंकि वो मेहनत करता है, सही जगह पे मेहनत नहीं करता। इसलिए आप मेहनत कर रहे हो, चुनाव ठीक करो, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका रास्ता कैसा है। आपकी डायरेक्शन एक साइड पे है, आप रास्ता दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, और आप सदका भी करते हो, खैरात भी देते हो, ठीक है, 10,000 रुपए मौलवी साहब को दे देते हो, ये मेरे लिए दुआ करनी है, 20,000 रुपए का बकरा लेके आप ज़िबा कर देते हो अल्लाह की राह में, इंशाल्लाह कामयाबी आवे ही आवे। कब आएगी भाई? जब डायरेक्शन ही ठीक नहीं, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। कम से कम आपकी डायरेक्शन ठीक हो, आपकी मेहनत हो, आपकी स्ट्रगल हो, आप दुआ करें, दुआओं में असर है, लेकिन हरकतें भी ठीक होनी चाहिए, रास्ता भी ठीक होना चाहिए, प्लेटफॉर्म भी ठीक होना चाहिए, जायज़ जगह पे मेहनत भी होनी चाहिए। बरकत कहाँ पे होती है? हलाल में। हम हलाल वाली जगह पे मेहनत कर ही नहीं रहे, हराम वाली जगह पे हम दिन रात एक कर रहे हैं, क्या हो? एक ना एक दिन तो उसका मतलब जवाब देना ही है ना। वो क्या कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आप नेकी करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, नेकी करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, लोगों को रास्ता दिखाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक टाइम जब आप पे मुश्किल वक्त आएगा, यही आपकी की गई नेकियां आपके लिए एक कश्ती का काम करेंगी, आपको डूबने नहीं देंगी सर, लेकिन उसके लिए साफ नीयत होना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है, सर हम काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सर ये काइंडली अपना वीडियो ऑफ कर देंगे, जिसने भी ओपन की हुई है, फौरी तौर पे वीडियो यहाँ पे कोई ओपन नहीं करेगा। इस चीज़ से मुझे एलर्जी है, मेरा फोकस जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग, एक बंदा कहता है मैं काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, स्किलफुल होना चाहता हूँ, टीमों को लीड करना चाहता हूँ, मेरी टीमें डिग्रेड ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो और प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जाएं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। सर टाइम नहीं होता तो जो कर रहे हो फिर इसी में खुश रहो, आप बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ये आपसे काम टाइम मांगेगा, जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे टाइम लगाएंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम न दें, तो फिर जो मिल रहा है, जितनी आप कोशिश कर रहे हो उतने में खुश रहो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर टाइम की तरफ आना पड़ेगा। नंबर 2, आपको इश्यूज हैं, टीम बात नहीं सुनती, आपकी टीम को पास एजुकेशन नहीं है, टीम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, टीम को अदर पर्सन इनवाइट करते हैं तो उधर चले जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, विजन क्लियर नहीं है, या उनसे डिसाइड नहीं हो रहा कि हम काम कैसे करें। तो सारे इसका बेस्ट सोल्यूशन है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। इस सिस्टम में रीढ़ की हड्डी और सिस्टम में लंबे टाइम तक रन करने के लिए आपके पास जो मेन हथियार है वो है सर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की मैं एग्जांपल जो दूंगा, एक बार एक जहाज का इंजन खराब हो गया, तो वो इंजन खराब हो गया तो उन्होंने दूसरे इंजन पे कन्वर्ट किया और लैंड करवा दिया। तो एक मिस्त्री को बुलाया गया कि भाई इस इंजन को ठीक करना है। उसने इंजन को घुमाया, चेक किया और एंड के ऊपर देखने के बाद कान लगा के महसूस किया और उसने सिर्फ एक हथौड़ा उस इंजन के ऊपर मारा, एक हथौड़ा इंजन को मारा और कहा कि इसके ऊपर कन्वर्ट करो। जब कन्वर्ट किया तो वही इंजन स्टार्ट हो गया, वो चला गया। तो दूसरे दिन उसने बिल भेज दिया क्या उस जहाज के मालिक को कि भाई मेरा इतना बिल है। उसने कहा कितना है? उसने कहा 1 लाख रुपए। उसने कहा भाई आपने एक ही हथौड़ा मारा है, एक हथौड़ा मारने का कौन 1 लाख रुपए चार्ज करता है? उसने कहा जो मेरी फीस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है, जो मेरी फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। 99,500 रुपए मैंने इस चीज के चार्ज किए हैं कि हथौड़ा मारना किस जगह पे है। समझ आ गई होगी आपको कि सर स्किल्स की इतनी वैल्यू है।
काम की वैल्यू नहीं होती, स्किल की वैल्यू होती है कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, टीम लीडरशिप मतलब टीम को लीड करने की क्या आपके अंदर स्किल्स हैं, आप कितना टीम को लीड कर सकते हैं, टीचर ट्रेन कर सकते हैं, उनको विजन दे सकते हैं, उनका विजन क्लियर कर सकते हैं, उनको मकसद दे सकते हैं, उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ये एक लीडर के अंदर होती है। जो कह रहा है कि मेरी टीम डिस्ट्रैक्ट होती है, जो लोग खराब करते हैं, तो वो अपनी टीमों की मीटिंग करे, एजुकेट करे। सबसे बड़ा सोल्यूशन है एजुकेशन। मोटिवेशन पे टीमें डील नहीं होगी, मोटिवेशन पे टीमें नहीं रुकेंगी, टीमें रुकेंगी स्किल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, प्रॉपर नॉलेज के ऊपर। तूने सही और गलत की जिस दिन पहचान आ गई, उनको अपने कैरियर की समझ आ गई, उनको सर 1 करोड़ रुपए सामने रख दो, पाँव की ठोक के ऊपर फेंक देंगे उठा के। मैं भीख मांगता हूँ, मैं अल्लाह के नाम पे लूंगा, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह को नहीं मानता, मुसलमान नहीं हूँ, मैं क्यों आपकी भीख लूं भाई? जब अल्लाह ने मुझे आजाद पैदा किया, मैं अपने आप को क्यों पाबंद करूं? जी अल्फाज होने हैं उस बंदे के। आप हैरान हो जाओगे उस दिन सुन के कि यार इसको क्या हो गया, इतनी इसके अंदर जनूनियत, इतना इसका विजन क्लियर। वो सर विजन क्लियर उस वक्त होगा जब उसको अपने कैरियर की समझ आ जाएगी। ऐसे नहीं आएगी कि पत्थर को सीना दो और चीर डालो, फलां कर दो, ये कर, ऐसा नहीं होता। विजन बनाए, सेल्फ मोटिवेशन उसको खुद आएगी। बंदा क्लियर हो गया, मोटिवेशन ही मोटिवेशन। और सर जो बाहर की मोटिवेशन है ना, लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, सर ये जस्ट एक शाम से लेकर सुबह तक की मोटिवेशन। सुबह उठेगा बंदा भूल जाएगा, लेकिन जिसका विजन क्लियर हो गया वो कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद है सर फैक्ट्री। एग्जाम्पल एक देना चाहूंगा फैक्ट्री की। फर्ज करें आप में से या मुझ में एक बैठा हुआ हर एक बंदा एक फैक्ट्री बनाता है और वो कहता है कि सर 20 साल लगाऊंगा जिंदगी के, एक मजबूत फैक्ट्री बनाऊंगा, एक ऐसी फैक्ट्री जिसके ऊपर मुझे नाज होगा, मुझे फख्र होगा, जी जब बन जाएगी, जब चल जाएगी, मैं हज भी करूंगा, मैं उम्रा भी करूंगा, जिंदगी को एंजॉय भी करूंगा, ऐश व इशरत भी होगी। ठीक है, वो अपनी सारी जिंदगी लगा देता है, जवानी लगा देता है, अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है, खाने पीने का पता नहीं, कपड़ों का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं। फैक्ट्री तैयार हो जाती है, 20 साल बाद इफ्तिताह होता है, रात को इफ्तिताह करके आता है, सुबह वो फैक्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी होती है, गिर चुकी होती है। सर इमेजिन कर सकते हैं अगर वो फैक्ट्री आपकी है और 20 साल जिंदगी के लगा दिए, जमा पूंजी लगा दी, खुद आप रिस्क पे हो, सारा कुछ आपने दौ पे लगा दिया, अपनी खुशियां, अपनी जवानी, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया उस 20 साल के लिए कि इसके बाद मैं एंजॉय करूंगा। आपकी सारी उम्मीदें उस फैक्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और सुबह वो गिर के तबाह हो बर्बाद हो चुकी। और सर वो फैक्ट्री कोई और नहीं, वो हर फैक्ट्री आप लोग हैं अपने वालिदैन के। तो उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपनी जो जो उनकी ख्वाहिशात थी आपके ऊपर निछावर की, आपके लिए कुर्बान की, खुद गीली जगह पे सो के आपको खुश जगह दी है, खुद कपड़े अच्छे ना पहन के आपको अच्छे कपड़े पहनाए, खुद अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, आपको अच्छे स्कूल से तालीम दिलवाई, खुद कामयाब नहीं हुए, आपको कामयाब करवाना चाहते हैं, खुद अच्छा जी के नहीं देखा, आपको अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं। तो क्या सर जिन लोगों ने आपके लिए 20 साल लगा दिया, आप उनके लिए 2-3 साल रुपए की 2-3 साल की कुर्बानी भी नहीं दे सकते? 2-3 साल के लिए आप ग्रो अप भी नहीं कर सकते, वेट भी नहीं कर सकते, विजन भी नहीं बना सकते अपने लिए, ना सही कम से कम उन बूढ़े वालिदैन के लिए तो कर लो जिनके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा। वो सिर्फ आपको सेटल, आपको खुशहाल, आपको अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं। वालिदैन की खुशी किस में होती है कि उसकी औलाद खुश हो, तो उसके लिए आप 2-3 साल की कुर्बानी नहीं दे सकते जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी आपके ऊपर लगा दी। और हम कहते हैं कोई शॉर्टकट, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई, कामयाबी एक प्रोसेस का नाम है। जो बंदा शॉर्टकट के चक्कर में, फौरी के चक्कर में जा रहा है, मेरी बात याद रखिएगा, कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता। हलाल कमाना पड़ता है, हराम मिल जाता है। हलाल कमाना है, मेहनत लगेगी, वेट करना पड़ेगा और आपको इश्यूज भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, स्ट्रगल भी आएंगे। कुछ बड़ा करना है तो छोटे छोटे इश्यूज तो आएंगे, उन इश्यूज से लड़ने वाला ही लीडर कहलाता है, भागने वाला थोड़ी ना, वो तो भगोड़ा होता है। आप एक बात याद रखें, एक मैदान में जब टीम खेल रही होती है तो वो अपना काम करती है, तमशाई शोर करती है। खिलाड़ी का काम है गेम करना, अपना रिजल्ट देना, उसका तमशाई के साथ बहसों मुबहसा या उसके साथ नाराबाजी करना नहीं है। तो इसलिए अपनी गेम के ऊपर फोकस करो ना, तमशाइयों को छोड़ो, आरजी लोगों को छोड़ो, और जो 2 लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, शुक्र अदा करो, कल बड़े टाइम पे जाके किसी अच्छे लेवल पे जाके इन्होंने जाना था, आज चले गए, टाइम से पता चल गया, टाइम से तैयारी कर लो भाई।
क्या फर्क पड़ता है? कोई ऐसा इशू नहीं। और याद रखिएगा, कामयाबी जो है ना, ये प्रोसेस करना, इसमें कोई लिफ्ट नहीं होती कि आप लिफ्ट पे जाओगे, बटन दबाओगे और अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए आप कामयाबी पे पहुंचेंगे। अगर जेन्युइन कामयाबी चाहिए, साथ में इज्जत भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, रुतबा भी चाहिए, मर्तबा भी चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए कि एक शेर भी है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना करने वालों में 5 आदमी हो, छठी माँ हो और रोटियां 5 हो। जब 5 रोटियां 5 बच्चों के सामने हो तो वो एक माँ होती है जो कहती है